Assalamu alaikum, my dear student. I am going to teach you computer study of class 9. First of all, I am going to give you the introduction of your syllabus. So, this book of computer science consists of 8 chapters. First chapter name is Introduction to Computer. Second chapter is Computer Component. Third, Input Output Devices. Fourth, Storage Devices. 5 Chapter number 5 है Data Representation. Chapter number 6 Boolean Algebra. Chapter number 8 Computer Software. Chapter number 7 Computer Software, and chapter number 8 Introduction of Windows Operating System. So in your midterm syllabus, 4 chapters are included. First is Introduction to Computer. Second chapter Computer Component. Third chapter Input Output Devices, and 5th chapter Data Representation. These 4 chapters are included in your midterm syllabus. I will send you all chapter which is included in your midterm. I will give you the syllabus of midterm that chapter include in your midterm syllabus, and as well practical which you will perform on GW Basic, and I will also teach online if it is possible. I think GW Basic is very cheap software and it is available on Google very easily, and you can download very easily within a seconds. Okay, first chapter of your computer science book of class 9 is Introduction to Computer. In this chapter, first I will explain the computer. What is computer? I think you know everyone you know about their computer. Okay, what is computer? Computer क्या है? There are so many definitions of computer including in your book, your many kind of you can say that many kind of notes which is available, which is easily available. So there is a computer definition is that computer is an electronic device that allows the accessing and processing of huge amount of data into meaningful information. Basically क्या है computer is according to this definition I explain the computer. कंप्यूटर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अलाउ करती है एक्सेसिंग मीन दैट कहाँ तक उस पहुंच सकता है, यानी आप किसी चीज़ को इनपुट कर रहे हैं फिर वो प्रोसेस हो रहा है उस और बहुत बड़ी अमाउंट का डाटा है जिसको फिर वो कंप्यूटर क्या करता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की शक्ल में आपको देता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट द रिजल्ट। इस पूरी डेफिनेशन को जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिवाइस सो देयर आर सो मेनी डिवाइस बट कंप्यूटर इज एन यू कैन से दैट द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को एज ए इनपुट के तौर पे लेती है, ठीक है, फिर उस डाटा को प्रोसेस करता है कंप्यूटर के सीपीयू में जाके, वो डाटा भले जितने भी अमाउंट हो, ह्यूज अमाउंट हो, स्मॉल अमाउंट हो, सही है, और फिर उसको आपको आउटपुट की शक्ल में मॉनिटर और पेपर पर उसका रिजल्ट देता है, ठीक है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि रिजल्ट, ठीक है। Next definition of computer is that the computer is an electronic machine that store, retrieves and process the information of the data. It means that the computer एक electronic machine है, सही, एक ऐसी मशीन जो कि डाटा को स्टोर करती है,
ठीक है, फिर डाटा को रिट्राइव करती है। रिट्राइव मीन्स दैट कि जब भी आपको डाटा चाहिए होगा आप उसको दोबारा जो है ओपन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसको दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं और फिर उसको प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन देता है उस डाटा की, यानी उसका रिजल्ट देता है। इसका मतलब हो गया कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को स्टोर करती है, फिर रीड्राइव यानी जब आपको उसकी ज़रूरत होती है आप उसको दोबारा देख सकते हो, उसमें एडिट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। और फिर प्रोसेस का मतलब, प्रोसेस मीन दैट उस पर वर्किंग होगी। प्रोसेस का असल मतलब क्या होता है? वर्किंग। ठीक है, उसका प्रोसेस करने के बाद जो है आपको रिजल्ट देती है मॉनिटर स्क्रीन पर या फिर पेपर। ठीक है, वो डेफिनेशन हैव सेम मीनिंग। Another definition of a computer is that I am going to explain. It is not written here. Is that computer is an electronic data processing machine? It means that it is a very small definition, very short definition, but it this definition explains the whole information about the computer. Uh, Information about the definition of the computer. Computer is an electronic data processing machine. That means the electronic data. We have the word electronic data. Electronic means that इलेक्ट्रॉनिक डाटा मीन्स दैट कि वो डाटा जो कि सिग्नल की शक्ल में पास होता हो। ठीक है, उस डाटा को क्या करता है? वो डाटा प्रोसेस होता है। ठीक है, कंप्यूटर वो मशीन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा को डाटा पर काम करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्या होता है? जो कि सिग्नल की शक्ल में पास होता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपका आपने डाटा कोई इनपुट करा विद द हेल्प ऑफ अ माउस और विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। सो वो डाटा जो है माउस और कीबोर्ड के ज़रिए आपके सीपीयू में जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाके वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद जो है आपको मॉनिटर पर उसका आउटपुट शो कर देगा। जो डाटा माउस और कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर के अंदर गया था, सीपीयू के अंदर गया था, सही है, वो किसके ज़रिए गया था? वो सिग्नल्स के ज़रिए गया था, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के ज़रिए गया था। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक डाटा मीन्स दैट वो डाटा जो कि सिग्नल्स पर काम करता हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इस टॉपिक को हम अभी यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। यस, there are the two main parts of the computer. One is hardware, second one is software. Hardware is a physical component of the computer system. Any physical component of computer and the other attached input output devices are called hardware. Hardware, I think you have listened the name of the hardware. When you listen the commonly name the hardware, that is the hardware shop in your area. That is that there is a different kind of a hardware which is used at your home. सही, आपके घर में यूज होते हैं, जैसे पाइप हो गए, नल हो गए, दीज आर द ऑल्सो अ पार्ट्स ऑफ अ हार्डवेयर, ऑल्सो कॉल्ड अ हार्डवेयर। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के वो चीज़ें, वो फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर के जो कि कंप्यूटर से अटैच हुए हुए होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस होती हैं, दीज आर कॉल्ड द हार्डवेयर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, हमारे पास आ जाते हैं ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट में भी कनेक्टेड, मैनुअली कनेक्टेड होते हैं। यानी किसी कोई स्लॉट के ज़रिए, कोई वायर के ज़रिए,
कोई सॉकेट के ज़रिए, सही है, आपके या कोई पोर्ट के ज़रिए आपस में इंटरकनेक्ट हुए हुए होते हैं। सही, हार्डवेयर में बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस आ गई हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ गए, सीपीयू आ गए। हार्डवेयर इनपुट डिवाइस कौन से आ गए? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो है आउटपुट डिवाइसेस में कौन सा है कि आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर्स हो गए। See, these are the output devices that is also called the hardware of the computer system. एंड सीपीयू में प्रोसेसर हो गया, आपका बोर्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम, रोम एंड many other thing which is attached inside the computer as a manual. Software. The definition of the software is very important. If you know about the definition of the software, the set of the instruction that is stored as a program that govern the operation of computer system and make the hardware run. Set of instruction means, first of all, you should know about the meanings of the instruction. There are many ways to explain the meaning of the instruction in computer के वे में। जैसे कि इंस्ट्रक्शन का मतलब ये क्या होता है कि इंस्ट्रक्ट करना, किसी को बताना कि जो है आपको किस तरीके से काम करना है। सही, एक इसमें भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। एंड अनदर वन इज ऑपरेशन। मीनिंग्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑपरेशन मीन्स दैट द सॉफ्टवेयर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन दैट कि सॉफ्टवेयर के जरिए आप जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उसको किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी मीनिंग्स में इसको कह देते हैं सेट ऑफ ऑपरेशन, यानी कंप्यूटर को किस तरीके से ऑपरेट करना है। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर को व्हेन एवर यू ऑपरेट द कंप्यूटर यू शुड टेक द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी। सही, वो जो पहले से आपके कंप्यूटर में स्टोर होगा। ठीक है, ये रही, वो स्टोर होगा पहले से आपके उसमें, फिर आप उसको बताओगे कि कैसे उस पर काम करना है। ठीक है, और उसी की हेल्प से जो है आपके जो हार्डवेयर होंगे वो मूव करेंगे, वो रन करेंगे। सही, जिस तरीके से आपके कंप्यूटर में अगर स्पीकर लगा हुआ होगा, ठीक, तो आप उस स्पीकर को कैसे सुनेंगे? उस स्पीकर पे आवाज़ कैसे सुनेंगे? वॉइस कैसे सुनेंगे? आपको उस स्पीकर पे वॉइस सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप जब तक कंप्यूटर में जाके सॉफ्टवेयर से उसको नहीं चलाएंगे, कोई सॉन्ग है, कोई म्यूज़िक है, सही, जब तक आप जाके उसको सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जैसे वीएलसी प्लेयर हो गया, जेट ऑडियो हो गया और मीडिया प्लेयर्स हो गए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जाते हो, कोई भी आपको सॉन्ग वगैरह कुछ भी सुनना होता है तो आप जाके उस पर क्लिक करते हो। ठीक है, तो वो चल जाता है। और वो चलता किस पर है? हार्डवेयर पर, यानी वो आवाज़ आपको एक हार्डवेयर जिसको स्पीकर कहते हैं उसकी हेल्प से आपको सुनाई देती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड वन है, आई थिंक ये जो है डिफरेंस है, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ टू इन एज अ डेफिनेशन के तौर पर भी काफ़ी है ये आपके लिए। दे आर डिज़ाइन बाय द प्रोग्रामर, जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर को जो है प्रोग्रामर बनाते हैं। ठीक है, और वो जो है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते हैं कि जो उसकी जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। I think this thing, the types of a software uh, you will uh, detail study in your 7th chapter कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आप पढ़ेंगे। ठीक है, बट आई एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट वे द बोथ डेफिनेशन ऑफ बोथ दिस थिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को मूव करते हैं। सही है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, जो कि आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हो। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको चलाता है, यानी जो आपकी विंडोज़ होती है, ठीक है, उसको क्या करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो वो बेसिकली आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके पूरे सिस्टम को चला रहा होता है, यानी आपके कंप्यूटर को चला रहा होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी खास पर्पस के, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पेंट ब्रश हो गया, ये फोटोशॉप हो गया। these softwares are application software। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं,
विंडोज़ 98, विंडोज़ 2007, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है आपके पूरे सिस्टम को चलाता है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके कंप्यूटर हार्डवेयर होंगे वो सारे क्या करेंगे, काम करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आपके तमाम कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में इंटरकनेक्ट करके उनको चलाता है। ठीक है, ये थी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है। ठीक है यानी कोई ख़ास वर्क के लिए उसको बनाया जाता है और वो सिर्फ वही ख़ास काम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसको उसी ख़ास काम के लिए ऑपरेट कर सकते हो, उसके इंस्ट्रक्शन को उस ख़ास काम के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप जो है सिर्फ रिटर्न वर्क कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप जो है क्या कैलकुलेशन वर्क कर सकते हो, मैथमेटिकल वर्क कर सकते हो, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बना सकते हो, फोटोशॉप पे आप एडिटिंग कर सकते हो। इसके अलावा और जो ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आप सिर्फ फोटोशॉप पे बना सकते हो। तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो था इसका, अकॉर्डिंग टू योर बुक। जी, बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर और कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। आप इसको दोनों मीनिंग्स में ले सकते हो क्योंकि आपकी बुक में जो है कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर है। ठीक है, तो आपकी कंप्यूटर की जो बुक है उसमें जो आपका टॉपिक है, थर्ड टॉपिक आई थिंक यही है। व्हेन यू ओपन योर बुक एंड यू विल सी दैट थिंग, so it will appear in your front pages of your book. एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर और कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर। कैपेबिलिटीज मीन दैट सलाहियत जो है उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर वो क्या क्या कर सकती है। ठीक है ना, एडवांटेजेस फायदे कह सकते हैं उसको आप। ठीक है, एडवांटेज इसमें आ जाते हैं सबसे पहले स्पीड। कैपेबिलिटीज और एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर में सबसे पहले हम आ जाते हैं स्पीड। स्पीड, कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा फास्टर देन एनी अदर मशीन डिजाइन टू परफॉर्म अ सिमिलर टास्क। यानी बेसिकली कंप्यूटर जो है हर काम बहुत तेजी से कर सकता है। सही, आम तौर पे जो आदमी 10 आदमी काम कर रहे होते हैं एक वक्त में, उस कंप्यूटर जो है उनसे ज़्यादा तेज़ी से काम सिंगल ही कर लेता है। एक मतलब कंप्यूटर उन 10 लोगों का काम एक ही मतलब टाइम में बहुत तेज़ी से कर लेता है, उनसे भी तेज़ी से कर लेता है। ठीक है, हर काम बहुत तेज़ी से करता है, इस वजह से इसको अब सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, हर जगह इसको यूज़ किया जाता है। रिपीटेशन, computer can tirelessly perform the same operation million of a time in exactly the same way without getting bored and tired the way a human clerk would। means that the computer जो है कि बगैर थके बहुत सारा काम जो है, एक जैसा काम या बहुत सारा काम जो है मिलियंस ऑफ टाइम का काम जो है बहुत तेज़ी से और बार बार कर सकता है। ठीक है, और बगैर थके हुए, मीन टायरलेसली मीन दैट गेटिंग बोर्ड, दैट जैसे हम जो है कोई काम कर रहे होते हैं तो हम वो एक ही काम कर करके थक जाते हैं या हम जो है बोर हो जाते हैं या जो भी हो जाता है। सही है ना, जैसे कि ह्यूमन क्लर्क होता है, क्लर्क का काम क्या होता है, जैसे वो फाइलिंग वर्क कर रहा होता है, रिटर्न वर्क कर रहा होता है, उसके बहुत सारे काम होते हैं, उसके वर्क होते हैं। तो वो सारे काम जो है वो कर करके थक जाता है, बोर हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, कंप्यूटर से आप जितने भी टाइम रिपीटेशन में काम करा लो वो करता रहेगा, वो जब तक मतलब वो किसी भी रुकावट के ज़रिए, किसी भी बोरियत के बगैर वो काम अपना जारी रखेगा। ठीक है, एक्यूरेसी, a computer's high speed processing is accomplished by high accuracy result। क्या है, a computer's high speed processing is accomplished by high accuracy result। no other system can have a much as accurate as computer। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, हर काम बहुत एक्यूरेट करता है। अगर आप उसको सही इनपुट देंगे तो आपको वो बिल्कुल एक्यूरेट उसको प्रोसेस करके आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा।
अगर गलत देंगे तो जाहिर सी बात है वो गलत ही देगा, सही है। एंड अदर देन दे हैव अ मच एक्यूरेसी, यानी दूसरी जो डिवाइसेस होती हैं मतलब उनसे कंप्यूटर जो है उनके मुकाबले में आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। आपने देखा हो ना आजकल हर जगह कंप्यूटर ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती थी, लेकिन कंप्यूटर के ज़रिए वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं रिज़ॉल्व हो गई हैं और वो काम भी बहुत तेज़ी से होता है और काम भी बहुत एक्यूरेट होता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन, I think it is very difficult to understand that what is the logical operation. So I explain you very easy words. Logical operation: the computer can make decision based on the some condition and takes alternative course of the action accordingly. अच्छा जी, लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है? इसमें आपने देखा होगा नीचे क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर कैन मेक डिसीजन, मतलब डिसीजन बनाना। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को डिसीजन कोई भी काम हम डिसीजन किसी चीज़ का डिसीजन ले रहे होते हैं, तो हमें जो है उसमें क्या देखना पड़ता है, वो हमारी जो है बेसिकली लॉजिक से होता हुआ गुजरता है। ठीक, तो ये क्या करता है कंप्यूटर में, किसी भी किस्म का लॉजिकल वर्क होगा, जैसे किसी चीज़ को कंपेयर करना, किसी चीज़ को बताना कि कौन सी चीज़ कम है, कौन सी ज़्यादा है। ठीक है, आपने प्रीवियस में बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी होंगी कि फला चीज़ लेस देन टू फला थिंग्स, दूसरी चीज़ से। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है जो है कि एक ज़ू पार्क था, उसमें जो है जो 10 ईयर से लेस देन स्टूडेंट थे उनका जो है हाफ टिकट था, और जो 10 ईयर से ग्रेटर देन स्टूडेंट थे उनका जो है फुल टिकट था। तो दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन जो कंप्यूटर में बनती हैं, दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन जो है वो ज़्यादा कंप्यूटर के ज़रिए ही रिजॉल्व की जाती है। तो उन कंडीशन को जो रिजॉल्व किया जाता है उनको हम लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम डिसीजन लेते हैं, किसी चीज़ का किसी चीज़ को हम मवाजना करते हैं, कंपेयर करते हैं, वो चीज़ लॉजिकल ऑपरेशन कहलाती है। इसके अलावा आप भी लॉजिकल ऑपरेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे, आपका जो चैप्टर है बूलियन अलजेब्रा चैप्टर नंबर 6, उसके अंदर आप पढ़ेंगे, सही। उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़। Store and recall the information. The computer is like a human brain, as it can store fact, instruction and information and recall them when needed. Means that the computer क्या है, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह का काम कर रहा है। इसके अंदर जैसे हम कोई चीज़ याद कर लेते हैं और जब हमें वो चीज़ बोलनी पड़ती है या कुछ उसको हमें उस काम करना पड़ता है तो हमें वो चीज़ फ़ौरन याद आ जाती है। जैसे कि एग्ज़ाम में हम जाते हैं, क्या करते हैं, हम याद करके जाते हैं और एग्ज़ाम में जाके हम वो चीज़ लिख देते हैं पेपर में। ठीक है, तो कंप्यूटर में भी इसी तरीके से होता है, यानी कोई भी चीज़ है कंप्यूटर में वो स्टोर कर दी। ठीक है, जब आपको उसको यूज़ करना है, उस पे वर्क करना है या उसको देखना है या उसमें एडिटिंग करनी है, तो आपने क्या करा, उसको आपने ओपन करा। वो ओपन किस पर होगा, जब आप उसको ऑपरेट करेंगे, यानी उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, वो किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए करेंगे आप, सही है। वो उसी सॉफ्टवेयर पे खुलेगा जिस तरीके की उसकी फ़ाइल होगी, ठीक है, उस तरीके से खुलेगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब यही है कि उसको उसी तरीके से खोला जाएगा, ठीक है। आप उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर वो उसी फॉर्मेट पे खुलेगा और आप उसको जब भी दिल चाहे उसको देख सकते हैं, उसमें कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्या हो गया, कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है, उसमें कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप उसी स्टोर चीज़ को दोबारा खोल सकते हैं और उस पे वर्क कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एजेस ऑफ कंप्यूटर। दिस टॉपिक, इसमें आपको आई एक्सप्लेन अबाउट द एजेस ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर किन एजेस से होकर गुजरा है। ठीक है, these are the three ages of the computer. There are the three ages of the computer. One is dark age, middle age and modern age. One is dark age, second one is middle age, and third one is modern age. I think there is no written.
यहाँ हम कर लेते हैं नीचे। मॉडर्न एज, ठीक है। I will explain about this modern age after explaining of these two ages of the dark age and middle age। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको डार्क एज के बारे में बताता हूँ। ये वो टाइम था जब स्टार्टिंग हुई थी कंप्यूटर का, ये सोचा गया था। एट दैट टाइम द मैथमेटिशियन थॉट अबाउट द calculation that is included uh, in computers field। जैसे कि एबाकस थे, एबाकस जो था ये आप मैनी different kind of a books you will study about the abacus। Abacus was a Chinese mathematician 3000 BC, ये 3000 ईयर अगो, 3000 BC, इन 3000 BC और 5000 BC, कहीं पर 3000 BC नजर मिलेगा आपको और कहीं पर आपको मिलेगा 5000 BC। तो आई थिंक देयर इज सम जो है आपको ये डिफरेंस मिलेगा, बट डोंट गेट कंफ्यूज है। सो अब यहाँ पर यही है कि 3000 BC में, तो 3000 BC में चाइनीज मैथमेटिशियंस था से दैट वाज अ नेम ऑफ abacus से he invented a counted number of device, say that is the ancient digital computer, that is called the ancient, that is known as the ancient mean पुरानी डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या था, इसमें कुछ स्लाइड्स लगी हुई होती थी, सही, स्लाइड्स होते थे, इसमें बीट्स होती थी, उसकी मदद से जो है इसको काउंट किया जाता था, नंबर्स को काउंट किया जाता था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये किया जाता था, ठीक है। फिर इसके बाद आ गए नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जिसने एक डिवाइस जो है इन्वेंट करी थी, जो कि नेपियर बोन्स के नाम से थी। अच्छा, ये जो है नंबर को कैलकुलेट करती थी, इसमें 11 रॉड्स थी, उन पे मार्क लगे हुए थे, सही, वो रॉड जो है साइड बाय साइड जो है कैलकुलेट करती थी। ये प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना, प्लस करना और कोशेंट ऑफ लार्ज नंबर जो है फाइंड आउट करने में हेल्प देती थी। ब्लेस पास्कल, it was the first mechanical calculator and it can gives the result up to the 8 digits। अच्छा, फर्स्ट ब्लेस पास्कल जो था बेसिकली एक कस्टम कलेक्टर का बेटा था जिसने अपने फादर के लिए कैलकुलेशन में आसानी करने के लिए, अच्छा ये जो है उसने एक मशीन कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट करी थी जिसको पास्कल लाइन भी कहते थे। 40 मिनट हो गए तो रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी होगी। नहीं, अभी नहीं, जिसको पास्कल लाइन भी कहते थे, ठीक है। तो ये थी पहली कैलकुलेटर, ये थी फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस थी। ये कि 8, अब तो हमारे उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, 9 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, इसमें 8 डिजिट्स हुआ करते थे, ये कैलकुलेशन में हेल्प देती थी, ठीक है। इसके फादर कस्टम कलेक्टर है, उनके वर्क को ईजी करने के लिए इसने जो है ये डिवाइस जो है डेवलप करी थी। अच्छा, या इन्वेंट कह लें आप इसको, उसके लिए इसने काम किया था। अच्छा, इसका ताल्लुक जो था फ्रांस से था। मिडिल एजेस, मिडिल एजेस क्या थी, यानी दरमियानी एज थी जहाँ पर कंप्यूटर को जो है प्रोसेस डाटा प्रोसेसिंग को जो है इसमें है द मिडिल एज ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग आर सेट टू बी एज ऑफ द पंच कार्ड, यानी इनको पंच कार्ड की एज कहा जाता है। इसमें जो डाटा प्रोसेस होता था वो
पंच कार्ड की हेल्प से होता था, ये स्टोर होता था, जो भी था वो पंच कार्ड की हेल्प से होता था। अब इसमें क्या है, इसके बाद आ जाते हैं हम, यानी जब से पंच कार्ड आना शुरू हो गया, पंच कार्ड आई थिंक जो हमारी जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर स्टार्ट होंगी, यानी 1942 प्रेजेंट तक, जो उसकी फाइव, हमारे कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स थी, वो सारी जो है मिडिल एजेस से भी लेकर मॉडर्न एजेस तक सब आ गई थी। इसके बाद मॉडर्न एजेस थी, मॉडर्न एजेस में, अच्छा सॉरी, ठीक है, अच्छा, हम्म, ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है। हाँ, ग्रीन ग्रीन मूवी नहीं कहाँ से हुई है? सेव तो हो गई होगी, जितनी हुई है ना उतनी सेव हो गई। दो क्यों हुई है? अबे एक और दो होती हैं तो मिक्स हो जाएंगी हैं।